Hello students, today I am going to start a new topic, that is amines. It is the one of the important topic of nitrogen containing functional groups. Amines are what? These are nitrogen containing organic compounds and they are basic in nature. Amines occur in both plants as well as in animals, and examples for amino compounds are protein, vitamins, alkaloids and hormones. More compounds are there like nicotine and tobacco also. Diazonium salts are also nitrogen containing compounds. They are in the intermediates in the preparation of various types of aromatic compounds. Quaternary ammonium salts are also used as surfactants. Now, what amines are? What type of organic compounds? These are the derivatives of ammonia. So let's see how. As you people already know what is the structure of ammonia. This is the structure of ammonia, NH3. It has one lone pair, and if I am going to replace one of the hydrogen by an alkyl part, it will be an amine, like this. If two alkyl part, this is also an amine, this is also an amine. Now let's see the classification of amines. As amines are classified into three basic types: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस. हमने ये हैलोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल्स में भी पढ़ा था. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स या फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं. सो इन क्लासिफिकेशन पार्ट, प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं? प्राइमरी अमाइंस मीन्स व्हाट? इन दिस RNH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर प्राइमरी एल्फेटिक अमाइंस. Primary amines, in this one of the hydrogen atom of the ammonia is replaced by the alkyl part, that's why it is termed as primary. And in this the nitrogen is sp3 hybridized. ठीक है, तो अब ये RNH2 हो गया. तो अब ये हमने जो हैलोजन और अल्कोहल्स में पढ़ा था उसमें क्या होता था? फंक्शनल ग्रुप सेम रहता था, कोई चेंज नहीं होता था. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप थोड़ा चेंज होने वाला है. देखिए, अगर सेकेंडरी अमाइन बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? R2NH. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये NH है और ऊपर वाला क्या था? NH2. और अगर टर्शरी अमाइंस बनाना है तो R3N. तो देखो अभी ये भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, NH2, NHN, ऐसे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं इसमें. जबकि ये है सब क्या? अमाइंस ही है, बट चेंज दिख रहा है ना. वहाँ पर OH Cl सेम रहता था, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था. जैसे CH3Cl है, CH3 ट्वाइस CHCl है, CH3 थ्राइस CCl है. ये Cl सेम रहता था, सिर्फ अल्किल पार्ट चेंज होता था. यहाँ पर क्लासिफिकेशन में कैसे बताया है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में यहाँ पर नंबर ऑफ अल्किल पार्ट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट देखो फंक्शनल ग्रुप जो है NH2, NH और N ऐसे चेंज भी होता है. समझ में आया ये? तो ये इनके एक एक एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आपको मैं. मैंने एक ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है. एग्जाम्पल CH3NH2 हो सकता है, CH3 ट्वाइस NH and CH3 thrice N. ऐसा. Now this secondary and tertiary alkyl amines are further classified into two more types. One is symmetrical and other are unsymmetrical. तो ये देखो, secondary and tertiary amines are further classified into two basic types. One is symmetrical and other is unsymmetrical. Symmetrical and unsymmetrical. Symmetrical और unsymmetrical कैसा? Symmetrical means when same alkyl groups are attached, it is termed as symmetrical, and when the different alkyl groups are attached, it is termed as unsymmetrical. ठीक है, एग्जाम्पल बता देती हूँ. CH3NH2 है, इसमें अगर मैं इसको सेकेंडरी बनाऊं तो इसमें एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये CH3 है. और CH3 और C2H5 ट्वाइस NH ऐसा हो सकता है, या फिर C2H5 थ्राइस N. देखो अल्किल ग्रुप सेम है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज व्हाट? सिमेट्रिकल अमाइंस. एंड अनसिमेट्रिकल व्हेन द अल्किल पार्ट आर डिफरेंट. CH3 C2H5 NH, CH3 C2H5
C3H7N. So these are the examples of symmetrical and unsymmetrical amines. Now next is the nomenclature part. Nomenclature, as you people already know, there are two types of naming system. One is common naming and other is IUPAC naming. In case of amines, common naming, they are named like ethylamine, methylamine, means alkyl amine is the name. Alkyl amine. ठीक है. And in IUPAC naming, there are two methods by which we can name them. That is aminomethane, aminoethane, like that, means aminoalkane, or there is one more type, that is alkanamine. ऐसा भी बुला सकते हैं, अमीनो अल्केन या फिर अल्केनामीन. अमीनो वर्ड तभी यूज करना जब हमारे पास में उसे एज अ प्रीफिक्स यूज करना होगा, तब हम उसके लिए अमीनो वर्ड यूज करेंगे. अगर हमें सफिक्स की तरह यूज करना है तो अल्केनामीन, मिथेनामीन, इथेनिमीन, लाइक दैट. लेट्स सी द एग्जांपल्स. इज CH3NH2 है, तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा. कॉमन नेम में क्या नाम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया, इट इज termed as alkyl amine. और IUPAC नेमिंग में क्या बोलते हैं, alkanamine. सो alkyl amine CH3NH2 क्या हो जाएगा, CH3 मीन्स व्हाट, मिथिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथिलामीन. ठीक है. और अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या नाम हो जाएगा, मिथेनामीन. ठीक. और इसका यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथिल, इथिलामीन, इथेनामीन. 3 कार्बन एटम्स, प्रोपिलामीन. IUPAC नेम प्रोपैनामीन. दिस वन 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना पड़ेगा. सेकेंड कार्बन पे आ रहा है. और अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 एमिनो प्रोपेन, 2 एमिनो प्रोपेन. ठीक है, समझ में आया नाम कैसे लिखा, 2 एमिनो प्रोपेन. और अगर मुझे, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, प्रोपैन 2 अमीन, प्रोपैन 2 अमीन और प्रोपैन 2 अमीन. वेरएज इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये देखो आइसोप्रोपिल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आइसोप्रोपिल अमीन. चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो. हाँ, मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 एमिनो प्रोपेन लिखा है मैंने, ये ओल्ड IUPAC नेमिंग में था. अभी न्यू IUPAC रूल के हिसाब से इसका नाम कैसा होना चाहिए, अल्केनामीन, मीन्स प्रोपैन 2 अमीन ही लिखेंगे. एमिनो वर्ड अगर हम पहले लिख रहे हैं और फिर उसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो फिर वो ओल्ड नॉमेनक्लेचर में आ रहा है. तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में IUPAC नेमिंग के लिए आता है तो आप अल्केन अमीन के हिसाब से ही उसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे. Now let's see these. These are what? These are all are secondary amines. ठीक है. While naming the secondary amines, what you have to do for writing down the common name, it's very simple. जैसे ये एग्जाम्पल लिया तो मिथिल ग्रुप है, ये भी मिथिल ग्रुप है, डायमिथिल अमीन नाम हो जाएगा, डायमिथिल अमीन. But for writing down the IUPAC name, what you have to do, you have to write down, if there is no CH3, what will be the name, it will be methenamine, and this CH3 group is attached to what, it is attached to nitrogen, so it will be what, it will be called as what, N-methyl methenamine. ठीक है. यानी अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है सेकेंडरी अमाइन का तो कैसे लिखते हैं, N-alkyl alkanamine, N-alkyl alkanamine. ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने. अगर मुझे प्राइमरी अमाइन लिखना है तो अल्केनामीन ही नाम होगा, बट अगर मुझे सेकेंडरी अमाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, N-alkyl alkanamine.
तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाले ग्रुप को हटा दिया तो इसका नाम क्या है, इट इज मिथेनामीन। और CH3 ग्रुप किसको लगा हुआ है, नाइट्रोजन। एक्चुअली ये हाइड्रोजन हम यहाँ लिखते हैं बट हाइड्रोजन तो ऊपर रहता है ना, ये ऐसी बॉन्डिंग रहती होगी, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स है ना, तो एन मिथिल मिथेनामीन। तो नाम क्या हो जाएगा, एन मिथिल मिथेलामीन। दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इथिल पार्ट एंड दिस वन इज मिथिल पार्ट। तो अब अगर मुझे IUPAC कॉमन नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, इथिल मिथिल अमीन, इथिल मिथिल अमीन। बट अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो कैसा होगा, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंगली योर पेरेंट चेन मस्ट बी दी लार्जेस्ट वन। सो विच वन इज द higher part, this one is the higher part, that is ethyl group is the higher. So what will be the basic parent compound, it will be ethanamine. Basic compound क्या हो जाएगा, ethanamine, and methyl group is attached to it, so it will be N-methyl ethanamine, N-methyl ethanamine। ठीक है, अब ये वाले कंपाउंड को देखो, इसमें क्या है, एक C2H5 है, दूसरा भी C2H5 है और एक CH3 ग्रुप है। अगर मुझे अल्किल अमाइन है यानी कॉमन नेमिंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डाई इथिल मिथिल अमीन, डाई इथिल मिथिल अमीन। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, इथिल ही पार्ट बड़ा है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो फिर ये पार्ट बड़ा है, ये मैंने टर्शरी का ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब अगर ये टर्शरी, ये वाला टर्शरी का है बेटा, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये इथिल पार्ट है। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब N को कौन लगा हुआ है, N को एक इथिल लगा हुआ है और एक मिथिल लगा हुआ है, तो कैसा होता है, टर्शरी अमाइन लिखने के टाइम पे नाम कैसे लिखते हैं इसका बता देती हूँ, इट इज N अल्किल अल्केनामीन, N अल्किल 2 times N अल्किल अल्केनामीन। ठीक है, एन अल्किल अल्केनामीन ऐसे लिखेंगे। बट अगर मुझे इसका, अब सपोज करिए कि अल्किल दोनों सेम है तो N, डाई अल्किल अल्केनामीन भी हो सकता है। अभी इस ग्रुप में वही है, इसमें दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं, बट वो पेरेंट चेन में तो C2H5 लिया है, इसीलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये इथेनामीन हो गया, तो ये इथेनामीन हो गया। और N को कौन लगा हुआ है, इथिल लगा हुआ है, और N को मिथिल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, N इथिल N मिथिल इथेनामीन। समझ में आया नाम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। N अल्किल अल्केनामीन सेकेंडरी के लिए लिखते हैं, तो अगर टर्शरी लिखना है तो N अल्किल अल्केनामीन ऐसा लिखना होगा। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे और क्लियर होगा आपको। Now these are few examples. This is what this compound is termed as what? It is an aromatic. These all are the examples of aromatic amines. So first one is what? First one is aniline. इसका common name क्या होता है, aniline. और अगर इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, एज सच एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ भी IUPAC नेम ऐसे होते नहीं है, पर तो हम इसका IUPAC नेम भी क्या लिख सकते हैं, एनिलीन और बेंजेनामीन। अब ये कौन सा है, देखो सेकेंडरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH ग्रुप है, इसीलिए ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया। और अगर इसका मुझे नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन है ये, तो अभी इसके नाम कैसे लिखेंगे आप, N मिथिल एनिलीन। ठीक है, समझ में आया कैसे नाम लिखेंगे इसका, N मिथिल एनिलीन। और अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो ये मिथिल ग्रुप है, ये फिनिल ग्रुप है, तो मिथिल फिनिल अमीन। ठीक है, अब ये वाले कंपाउंड का ये देखो, ये भी फिनिल ग्रुप है, ये भी फिनिल ग्रुप है, और NH है, यानी ये भी कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, तो अभी इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, डाइफिनिल अमीन। और अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा,
एन फिनिल एनिलीन। और इस कंपाउंड का लिखना है तो ये कैसा है, NH2 ग्रुप है, इसीलिए ये कौन सा अमाइन हो गया, प्राइमरी अमाइन हो गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, ये कैसे नाम लिखेंगे बताइए, इसका नाम कैसे होगा, 2 एमिनो। अब यहाँ पर इन दोनों में से इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा, तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 एमिनो, और ये टोलिन है। C6H5 ग्रुप पे जब CH3 लगा होता है तो उसे क्या बुलाते हैं, टोलिन बुलाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एमिनो टोलिन। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, टोलिडीन। क्या है, टोलिडीन। और कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो, तो ऑर्थो टोलिडीन। समझ में आया होगा आपको। सो हियर वी एंड्स विद द नॉमेनक्लेचर पार्ट। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।